Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. Please start by asking your queries. Okay, whatever queries you have, especially about the answer writing, you are facing any problem, or you have anything about answer writing. Especially answer writing will focus first, and later if you have something else, then you can ask that as well later on. So you can please type in the chat box your queries. All your queries will be answered. Good evening, everyone. Good evening, sir. Yeah. Happy to be here. Hello. Good Am evening. I audible? Yes. Yes, you're audible. And welcome, Sujawal. And thank you for taking out the time from your important schedule, your hectic schedule. I know it's training and it's so hectic and so much discipline required, and you are able to find the time from your hectic schedule. So I really appreciate, and we should utilize every single minute of yours at this No time. worries. Thank you, sir. Piyush is also with me. वो भी join कर रहा था 1 मिनट में. Yeah. तो Yeah. we Yeah, thought I कि welcome चलो. you also. I welcome you. हाँ. तो we thought कि जितना थोड़ा बहुत ध्यान इकट्ठा किया, let's share it with the maximum people. Commerce में already there is very constraint, a lot of constraints which we operate while preparing for commerce. तो we are here. एक डाउट पूछा है इन्होंने कि how to use the GS knowledge, interlinkages for intro and conclusion by GS knowledge. So I think in GS knowledge, economy and international relations ये दोनों बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके पेपर 2 के आंसर्स में. The quad can be used as an example of clique, as an example of how organizations coordinate despite having differences. Then the chief of defense staff can be used as an example for integration, LinkedIn. Okay. Then the changing from ordnance factory boards to defense public sector undertakings can be an example of how organization restructuring is needed, how it helps. तो और HRM में अग्निवीर स्कीम. तो इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी, इसी से एग्जांपल से यू विल गेट लॉट होस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू इंटरलिंक योर जीएस एंड ऑप्शनल, एंड इट विल गिव यू होस्ट ऑफ एग्जांपल्स. अगर आपको कंपनीज का नहीं भी पता तो इट विल हेल्प. अपूर्व, हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन. देखो, if you have spare time, you are welcome to explore the current affairs of financial markets at this point of time for the next 70 days. But if you are short of time, I think you can very well ignore it. जो भी standard notes या value add material सर का होगा, you utilize that and add it into your main answers. बहुत ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आएंगे और आधे एक नंबर का इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप करंट अफेयर्स ऐड करते हो. पुरानी चीजें भी पता है, it is as good as you can. It as good as if you can answer in the old or maybe 6 months old news or 8 months old news. It is as good as that. So don't
spend. It will not have adequate return on investment if you explore the current affairs of FMI now. Okay, ji. We'll try to continue the session as much as in English. 2025 attempt, you have completed paper 1. I think, how should I carry on? Paper 2 should be done over a long period of time with 4 to 5 hours daily, maybe for next 3, 4, 5 months. The more time you spend, the regularity you maintain, the more it gets into your muscle memory and the more integration of syllabus topics comes in and the more conceptual clarity you have and the lesser chances of forgetting it. So do it for some time for a longer period. ठीक है. Do we need to care about formats, working notes while writing? Let's say in process costing, absolutely. For certain topics, the formats are important. Rather, they help you save your time. अगर आपको पता है process costing में there will be the accounts purpose, there will be process accounts, then there will be statement of equivalent production if it is a WIP question. और उसके बाद आप नीचे उसके वर्किंग नोट्स बना सकते हो. प्रोसेस अकाउंट्स में भी प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी, फिनिश्ड गुड्स, देन नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, व्हाटएवर. बट मेक श्योर कि जो आपको डेजिग्नेटेड टाइम मिला हुआ है, लेट्स से 20 मार्कर, तो 14 मिनट्स 15 मिनट्स में वो खत्म होना है. इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट, देन reduce your working notes, reduce the details you are giving. Time is primary. और वो टाइम बचाने के लिए द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप पेपर 1 की थ्योरी अच्छे से करोगे, इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा 1 minute in practical questions, so you will be able to write more and get more marks. और कुछ before we get into answer writing, if you have any specific doubt, please feel free to ask. So towards the end we will not take a lot of doubts. अभी कुछ पूछोगे तो we can answer. Issue we have specifically if you want something to be answered by Issue, he is also here. So Publication for paper. yeah, so I think questions will keep coming. What we can do is we can have 5-10 minutes of discussion by Issue. He can share his thought process, especially on Mains 24. How I mean, whatever he would like to say, and then we can start analyzing the answers, answer copy directly. And meanwhile, we can take the queries. Done. So Issue can take over. All right. So hi Vishu, welcome. You are on mute, Issue. Am I audible now, sir? Yeah, hi Issue, welcome. First of all, thank you for taking out the time from your hectic schedule, from your fun time. अभी मैं सुजावल से वही बातें कर रहा था. सर सुजावल का डेडिकेशन देख के आई ऑल्सो वॉलंटियर्ड फॉर इट, क्योंकि हम दोनों साथ में ही हैं यहाँ पर, एंड फॉर द पास्ट 1 week ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन. तो आई थॉट कि अगर मैं भी कुछ इनपुट दे पाऊँ तो इट वुड बी गुड. Yeah, please. तो सर मेरा भी कॉमर्स का 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 4 अटेम्प्ट्स का. तो उसके बेसिस पे जो एक क्रक्स मैं बता पाऊंगा वुड बी कि कॉमर्स में एक बेसलाइन नॉलेज सबका बराबर रहता है, बट इन दी एंड मार्क्स उसको आते हैं जो अपने कंटेंट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाता है. ये सबसे ज्यादा पेपर 2 में काम की चीज है, क्योंकि पेपर 2 में हम सब बेसिक मटेरियल वही पढ़ रहे हैं और हमारा बैकग्राउंड भी लगभग बीकॉम कॉमर्स या सीए का है. तो वो चीजें हमको अलग नहीं बनाती, जो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा डालते हैं वो हमारे काम की हमारे कंटेंट को डिफरेंशिएट करके मार्क्स ज्यादा देती है. जैसे अभी सुजावल कह रहा था कि जीएस के एग्जाम्पल हम कोट करें इसमें कॉमर्स में भी, तो ये सब चीजें हमको करना है. और इसके लिए हमको सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, रादर देन लिमिटिंग इट टू द स्टैंडर्ड सोर्स, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक्स हैं. थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करना होगा. सो फॉर एग्जांपल एक बुक है फॉर एचआरएम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, सम गैरी डेसलर. उस बुक को सर मैंने रेफर किया था और हार्डली 1 या 2 दिन लगा था, क्योंकि मेरा उसमें फोकस ये था कि मैं कुछ थिंकर्स एक्सट्रैक्ट कर लूँ या कुछ एग्जाम्पल देख लूँ. तो उसमें ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स हम बहुत ही वनीला वे में लिख के आ रहे हैं, उसके लिए कुछ एम्बेलिशमेंट मिल जाते हैं. जैसे एक याद है मुझको एग्जांपल, कुछ होटल का एग्जांपल दिया था उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर में, कि कैसे उनका स्टाफ को उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट किया हुआ है कि इससे ना सिर्फ एचआरएम हो रहा है, साथ साथ में इनके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं लॉन्ग टर्म वो भी फुलफिल हो रहे हैं.
तो सर ऐसे आंसर, अगर ऐसे हम चीजें अपने आंसर में लिख के आते हैं तो ये स्टैंड आउट करती है हमारी जो चीजें लिखी हुई है। और सर उसके अलावा जैसे सुजावल ने भी कहा कि पेपर वन में हमारा फोकस ज्यादा रहता है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल्स, कि न्यूमेरिकल हम ज्यादा अच्छे से कर लें, लेकिन थ्योरी कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है उसमें। तो अगर आप खुद ही सब एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि अपना 250 का जो पेपर होता है उसमें लेस देन 50% न्यूमेरिकल्स का वेटेज है और उससे ज्यादा है थियरी का। तो पेपर टू से ज्यादा मैं समझता हूँ पेपर वन की थियरी स्कोरिंग है। उसके लिए आप थियरी पे फोकस अच्छा रखें एंड देन इट वुड बी एन इजी सेल गोइंग ऑन दैट वे। सर इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक डाउट्स होंगे मैं उसके फॉर द स्पेसिफिक डाउट्स आई विल बी हियर एंड सुजावल वुड बी बेटर एबल टू Sure, tell sure. about answer writing. Yeah. Got it. And you have touched very important dimension, the value addition in paper two and in paper one, the theory part. If we can take care of these two things, we can differentiate our content. There is a question, human resource management. So the book name is Gary Dessler, Gerrydesler. I will post a picture of that. I have that book with me. And अगर आप मेंस 24 में अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली आई हैव टेकन आउट द इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट बुक and I have made a value addition of the human resource management. So you can request from us, we will provide it to you. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो वहां से हमने एक्सट्रैक्ट करके आई एम यूजिंग दैट बुक फ्रॉम मींस 23 फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडिशन। दैट्स रियली वेरी गुड बुक। बहुत अच्छा उसमें एग्जांपल्स, माइक्रो लेवल पे एग्जांपल्स दिए हैं। That's good, sir. Yeah. So any other question specifically right now? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द Sujaval and then we'll forward. Thank you, Ishu, for your time and for volunteering. It really means a lot for all of us. The pleasure was all mine. I'll be here. I'll Sure. add in as and when I Sure, feel like. please be here. Yeah. Thank you, Ishu. And one thing I missed out to congratulate everyone who has cleared prelims and is now giving mains. So prelims in itself is very tough, challenging, and demands that all your stars get aligned. So congratulations coming into the top 2-3% people who will be writing the mains and ultimately clearing it. So pat yourself and take it as an opportunity कि बस इतना पढ़ो next 70-80 days कि उसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े. So the more efforts and the intensive preparation it will help you कि आपको दोबारा attempt देने की जरूरत ना पड़े. So for next 3 months, 70-80 days, give it everything you have to this mains preparation, and especially these 80 days, every minute, every effort you make, it is directly proportional to the results you will get. So there is no time to be lethargic or to procrastinate. So let's come back and focus more on the answer writing. Paper 2 के answer writing, सिर्फ I'll share a few theoretical things which I've learned and obviously Ishu has learned over the period of time, and then we'll discuss a few questions from the answers I had written in the previous means, to actually not just tell you what answer writing is, you all know that, but to give you my perspective on it, that how sometimes having a standard framework in the mind, it helps you write the answers quickly, concisely, with keywords, and can also help you tackle the questions you don't know the answer about. And it gives an impression कि आप actual में you are very well read and you know the subject in and out. A few theoretical points. सबसे पहले तो my view has always been to attempt 3 questions from OTOB and 2 questions from HRM and IR. Now we have to attempt 5 questions of 50 marks each. So I always attempted 3 questions from section A, 2 questions from section B. So accordingly, I always concentrated my 65 to 70% efforts on OT and OB की preparation और उसकी answer writing, and 30-35% on HRM and IR. And then accordingly, क्योंकि OTOB में theories ज़्यादा हैं, examples ज़्यादा हैं, books ज़्यादा हैं, scope ज़्यादा है, and we also in the class we also read OTOB first. So it becomes a natural choice. It has helped me so far. It has helped most of us so far. And I hope it will help you also. If you are also comfortable, you can accordingly prioritize. Second, again, the structure of the answer, we all know it is an introduction, body, and conclusion. Since in paper 2, we know the definition of almost everything, whether it is personality, perception, leadership, motivation, change, culture, कुछ भी आए, thinker का नाम आपको पता है तो it will be good.
write the thinker's name in capitals, underline it and write the definition. कोशिश करो जितनी छोटी definition याद कर पाओ उतना बढ़िया. It should not go beyond 2.5 lines because उसके beyond जाएगा तो आपका main content will get compromised. You write the definition. उसके बाद अगर 15 मार्कर है या 20 मार्कर है तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि हर टॉपिक हर चैप्टर के साथ साथ एक एक डायग्राम याद कर लो. लेट्स से पर्सनैलिटी का है तो पर्सनैलिटी की GW एलपोर्ट की आपने डेफिनेशन लिखी, साथ के साथ एक छोटा सा पर्सनैलिटी का डायग्राम बना दिया, चाहे पेरेंट एडल्ट चाइल्ड ईगो स्टेट वाला बना दिया या फिर वो दूसरा आई थिंक इड सुपर इड या ईगो वाला है. हाँ, सिमिलरली अगर कल्चर है, कल्चर की डेफिनेशन लिखी, कल्चर इज सेट ऑफ assumptions, values, norms, patterns of behavior and artifacts, और साथ में छोटा सा एक डायग्राम बना दिया. ठीक है, अगर आपका रेडिली अवेलेबल डायग्राम है एंड इफ इट इज आस्किंग 15 मार्कर 20 मार्कर, वो रेडिली अगर आपको तैयार है तो आप 1-1.5 मिनट में इंट्रोडक्शन और डायग्राम कंप्लीट कर दोगे. नहीं है तो इट्स ओके, फेयर एनफ. उसके बाद वही बॉडी है, जो मेन डिमांड है उसी वहीं से कीवर्ड उठा के आप हेडिंग बनाओ अपने आंसर की और उसके नीचे अपना आंसर लिखो. One thing I always did, and you will see in my answers also, which we will be discussing forthwith, that I always used the different chapters, the syllabus के keywords to generate my points. Let's say if the question is about importance of leadership, my points will be कि culture अच्छा बनाना है, pull organization culture बनाना है, positive organization culture बनाना है, to ensure proper adequate change management, to motivate my employees, to ensure integration between different departments, to do crisis management, to give proper communication between different departments. ऐसे करके मतलब मेरे सिलेबस से ही कीवर्ड्स निकल रहे होते हैं. इट विल नॉट बी कि मैं बहुत ज्यादा नई यूनिक पॉइंट बना रहा हूँ. अगर यूनिक पॉइंट है तो इट्स ओके, नहीं है तो मैं सिलेबस से ही चैप्टर के नाम से ही अपने पॉइंट्स निकालूंगा एंड आई राइट इट एंड इट इज गुड टू गो. और उसी बहाने मेरे कीवर्ड्स, मेरी थ्योरीज और मेरे थिंकर्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. आई विल शो यू. वे फॉरवर्ड के लिए ऑलरेडी 10-15 पॉइंट अपने तैयार होने चाहिए कि हर चैप्टर में से दो जो वे फॉरवर्ड्स हैं, यू कंपाइल देम एंड दे शुड सर्व एज वे फॉरवर्ड फॉर एवरीथिंग. लेट्स लाइक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, लाइक विजनरी लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लाइक कर्टन लिटविन का 3 स्टेप चेंज मैनेजमेंट मॉडल. कुछ भी ऐसे 10-15 चीजें अच्छी याद कर लो एंड ऑलवेज यूज देम एज योर वे फॉरवर्ड्स. इट विल हेल्प. कंक्लूजन में देखो, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन कैन बी सेम इफ इट इज अ 10 मार्कर. If it is 20 marker and also in 15 marker of your GS questions, conclusion is different from your way forward. Way forward is कि आप आगे के solutions बता रहे हो. Conclusion is कि ये solutions implement हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा. Conclusion में भी way forward लिख सकते हो, एक नया way forward लिख सकते हो. या conclusion में आप ये भी लिख सकते हो कि जो मैंने way forward बताए हैं, a certain organization, a certain company implemented it and it got wonderful results. Similarly, if we implement in this organization, it will help. Either it could be a case study or it could be how implementing the advantages or the way forwards will be, or it could be another way forward, and it is needed more in 15 or 20 markers. 10 markers mein you don't have much of time and space, and special attention should be paid towards 20 marker questions, because you see in GS we have 3 pages for a 50 marker question, but in optional we have 3 pages for a 20 marker question. So the same time, same words, same space and extra 5 marks. So the quality becomes paramount. Quality cannot be ignored. So quality has to be kept into consideration. We can't just write anything and everything like in GS questions. We just write all the generic words. So यहाँ पे वो नहीं चलेगा. And moreover, since you have adequate time in paper 2 of optional, तो कोशिश करो थोड़ा छोटा लिखो और 3 पेजेस में ही 200-250 वर्ड जितने लिख पाओ. The more you write, the more points you write, the more keywords you write, the more marks you will get. तो कोशिश करो जितना आपको ज्यादा याद होगा, टाइम की कभी शॉर्टेज नहीं आएगी अगर आपको याद है तो. ऑप्शनल में कभी नहीं होगा. ठीक. एंड अनदर थिंग इज what problem for me was कि if I am doing optional for 10 days, means full 10 days, and then I am doing GS for 10 days, तो मैं जब 10 दिन GS कर रहा हूँ, I will forget optional. मतलब 30%, 40%, 50% साफ हो जाएगा. Instead of that, what I'll suggest you is कि आप 5-6-7 घंटे जितना घंटे भी ऑप्शनल कर रहे हो, you do it. जितने आपकी स्ट्रेटेजी है, we discussed it in the previous session also. वो फॉलो करनी है तो करो, उसको मैन्यूवर करना है तो करो, it's okay. But maintain the continuity of your optional, especially paper 2 throughout the mains preparation. भले ही आधा 1 घंटा पढ़ लो, भले ही just keyword, just theories, just thinker, भले ही सिर्फ 2-3 questions को brainstorm कर लो, you don't write the entire answer.
just brainstorm the questions. But that continuity is important to build that muscle memory, so that those keywords, diagrams, theories, they get ingrained in your mind. You don't have to think about it every time you are going to write about key that employees are immature, employees sometimes don't work. Theory X comes to your mind. Chris Argyris ka basic incongruence comes to your mind. Every time you are talking about aligning the individual goals and organization goals, the MBO should come to your mind automatically. Maximum not restricted output of, or maybe the mental revolution that Taylor talked about comes to your mind. Every time there is a talk about the conflict management, Mary Parker Follett's theory of constructive conflict should come to your mind. Now, these things I can quote today without thinking twice. It is because I have read them hundreds of times, and they get into my muscle memory. Every time I write the conflict answer about conflict, it will not be without Mary Parker Follett और that conflict वाला वो जो diagram होता है कि ऊपर एक मीडियम लेवल पे कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, नीचे जाके हाई कॉन्फ्लिक्ट पे भी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, लो कॉन्फ्लिक्ट पे भी परफॉर्मेंस कम हो जाती है. एंड सरप्राइजिंगली ऑल these topics are covered in our IPS training also. We read about conflict management, change management, negotiation, communication. So these things are very much practical. And say conflict management में अगर आपको एग्जांपल भी देना हो, so you can talk about democracy. How very less democracy will give poor results. वेरी मतलब डेमोक्रेसी नहीं, मैं मतलब डिसेंट या बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज को क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज्यादा भी स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी. इफ इट इज ऑलवेज अ वेरी क्लोज ड्रॉन बैटल, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द ऑल द स्टेक होल्डर्स. ठीक है. एंड वन यूनिक थिंग व्हाट यू ऑल कैन डू इज, मे बी दो दो तीन तीन लोग अपना ग्रुप बना लो, लाइक माइंडेड कोई बन जाता है तो जस्ट ओरली डिस्कस द क्वेश्चंस. 2023 का पेपर उठाया, जस्ट डिस्कस फॉर 2 मिनट कि इसका मैं इंट्रो ये लिखूंगा, बॉडी ये लिखूंगा, पॉइंट्स ये बनेंगे, कुछ यूनिक चीज जो मेरे को याद में आ रही है वो लिखूंगा, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन ये बनाऊंगा या ये बनाऊंगा. ठीक है. एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करते हुए माइंड में स्ट्रक्चर और एक यूनिक थिंग याद कर लो कि यहाँ पे डायग्राम या कुछ बन सकते हैं. बिकॉज इफ यू डोंट प्रैक्टिस डायग्राम्स इन योर मेंटली और व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स, इट विल नॉट कम व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग योर एग्जाम. तो वो चीज अभी से ही आपको प्रैक्टिस, और डू इट फॉर 30 मिनट्स अ डे. It will automatically get into your muscle memory. It works magically. Just do it for 7 to 8 days. You will see a significant improvement in your own confidence and execution of things. Okay, abhi tak any doubt? Otherwise, I'll take up my answer copy and give you a few glimpses of how I used to write the answers. कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो let's continue with the discussion. अभी तक पेस ठीक है, समझ में आ रहा है, things are relevant. सो तो नहीं रहे हो, लंच करके नींद तो नहीं आ गई है? ठीक है. अंजलि, हिमांशु, हर्षित, मीत, परीक्षा. ठीक है. तो बहुत ही मजेदार प्रिपरेशन होगी ये मेंस वाली आपकी. जस्ट गिव एवरीथिंग यू हैव गॉट टू इट. बोर हो रहे हो तो फाइंड सम पार्टनर, आंसर राइटिंग इकट्ठी कर लो, एक दूसरी कॉपी चेक कर लो. इट विल बी मींस जैसे ना मेंस देके खत्म हो जाएंगे ना आपके मेंस, यू विल फील अ ह्यूज वॉइड, यार एकदम फ्री हो गया, खाली हो गया, करें क्या. अभी जितनी एफर्ट मार लोगे, एवरी सिंगल मार्क, एवरी सिंगल आंसर, एवरी सिंगल कीवर्ड विल काउंट अल्टीमेटली. ठीक. सो शुड वी राइट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एवरी टाइम और ओसी इज फाइन. कुछ भी वर्ड आपको यूज करना है, पहले ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लिखा आंसर में, जब पहली बार यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ब्रैकेट में ओसी लिख दिया और आगे ओसी कंटिन्यू कर सकते हो अगर एकदम कल्चर का क्वेश्चन है. बट क्वेश्चन कोई और है, कल्चर आप वैसे वर्ड यूज कर रहे हो तो एक दो बार ही लिखोगे, तो यू शुड राइट द कंप्लीट वर्ड, बिकॉज ओसी इज नॉट अ वेरी वेल नोन और वेल एक्सेप्टेड एब्रीविएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ठीक है. तो अभी मैं अपनी आंसर कॉपी से कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूँ. इफ यू पीपल वांट, बिफोर डिस्कसिंग द आंसर, आई कैन ऑल्सो गिव यू मे बी 60 सेकेंड्स, 80 सेकेंड्स कि आप क्वेश्चन पढ़ो और अपने माइंड में एक आंसर बना लो कि मैं ऐसा ऐसा लिखता है, ऐसा ऐसा लिखती है, एंड देन आई विल शो यू माय आंसर. तो प्रोबेबली यू विल बी एबल टू कंपेयर एंड अप्रिशिएट बेटर कि मैं क्या मिस कर रहा था, क्या मिस कर रही थी, या हाउ पॉइंट्स कुड हैव बीन स्ट्रक्चर्ड. इफ यू वांट दैट, आई कैन गिव यू 60-90 सेकेंड्स बिफोर आई शो यू माय आंसर. आप कॉपी पेन लेके अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, कोई भी चेक नहीं कर रहा है, कोई आपको जज नहीं करेगा. ठीक है. चलो मोनिका, बढ़िया. सर कैन वी प्लीज शो माय आंसर कॉपी?
Yes, सिर्फ please. क्वेश्चन दिख जाए, आंसर ना दिखे, सो लेट्स गिव देम 60-90 सेकंड्स टू थिंक अबाउट टू ब्रेनस्टॉर्म। एंड अगर ये एक्टिविटी इन सबको अच्छी लगेगी तो वी कैन डू इट मोर ऑफन, मे बी 3-4 क्वेश्चन, बिकॉज लिखने का बहुत इनर्शिया होता है। इफ यू कैन जस्ट सी द क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्म इन योर माइंड, एंड देन आई कैन जस्ट गिव यू फ्यू की पॉइंटर्स एंड वी कैन कीप मूविंग अहेड। से रिवाइज भी हो जाएगा एंड दे लाइक इट, और बोर भी नहीं होंगे। योगेश लाइन बनाओगे ना तो आपका राजा जल्दी होगा, दिखने में अच्छा लगेगा। न्यूमेरिकल में कभी भी टाइम बचाने की ज्यादा कोशिश मत करो, थ्योरी इतने अच्छे से करो, थ्योरी आपकी 15 नंबर वाला क्वेश्चन भी 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। इट विल गिव यू एक्स्ट्रा 3 मिनट्स। यूज देम जुडिशियली इन योर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ज्यादा इधर उधर का तिकड़ा मत लगाओ, थोड़ा सा भी गलत होगा तो फिर पूरा क्वेश्चन ही पानी हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 28 हुए, 30 पे आई शो यू माई कॉपी जस्ट फॉर अ मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। एकदम प्लेन वनीला क्वेश्चन है, जस्ट थिंक, ब्रेनस्टॉर्म व्हाटएवर यू कैन। आई स्टे मॉम फॉर 60 seconds, then we will discuss. So let's start. आई होप आपने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा, बिकॉज अल्टीमेटली 6.5 to 7 मिनट्स होंगे आपके पास। कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ लिख देना है। तो वो कुछ ना कुछ की स्ट्रक्चरिंग क्या हो सकती है, उसके अंदर के पॉइंट्स भी आप डिस्कस करेंगे। बट इफ आई हैव टू सी इट अफ्रेश, कि शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप्स, तो मे बी इंट्रोडक्शन कुड बी विद स्टार्टअप्स की डेफिनेशन, जो खुद बना सकते हो, कोई थिंकर विंकर की नहीं, अपने आप की बना लो। दे आर स्टार्टअप्स आर की टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कुछ नई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग एट सॉल्विंग सम long pending problems in some innovative manner. They are also recognized by government of India startups, कुछ भी मतलब whatever comes to your mind। ठीक, मतलब डेटा से स्टार्ट, डेटा से तो नहीं, है बहुत रेलेवेंट रहेगा, स्टार्टअप की डेफिनेशन से करोगे, एक तो एग्जांपल दे दोगे, उसके बाद यू विल मे बी सी द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप्स, 4-5 फीचर्स लिख दोगे। एंड देन यू कैन से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टअप। मे बी एक टी शेप में आप टेबल बना सकते हो जिसमें एडवांटेजेस और challenges faced by the startups, या maybe the challenges faced by startups and how those challenges can be solved, and then at the end you can conclude with कि XYZ startup ने ये वाला structure adopt किया, वो बहुत successful हुआ, this can serve as best practice। या फिर अगर above said solutions will be implemented, then the challenges will be solved, and as we see that 80 to 90% of startups fail to become profitable, they will be able to overcome the relative structural inertia as stipulated by Hannon and Freeman। आपने थ्योरी बता दी, ठीक है। और मे बी यू कैन से कि use of proper linking pin, MBOs, hiring, competency based hiring, skill orientation framework, continuous review of goals will help that organization structure of startups is better oriented and suited to achieving its organization। मतलब कुछ भी, you are just taking the keywords from your syllabus, from what you have read, and just putting it as per the relevance of the question। ठीक है, तो अभी सर मेरे वाला आंसर दिखा देते हैं।
योगेश पेपर 2 में वर्ड लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, जितना उस टाइम में लिख सकते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। So what I have written, startups are relatively newer entities working with the use of technology or innovation to solve problems and create value. Example हो Zomato etc. मतलब वही vanilla easy सी वो डेफिनेशन है। बहुत ज्यादा नया नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ रटी रटाई नहीं है, सब उसी टाइम बना है। एंड आई रिमेम्बर ये सर का मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था एंड आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। आगे भी आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मतलब मेरे को था कि स्टार्टअप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे लिखना मैंने तो कभी नहीं लिखा, सो आई टुक सम टाइम टू रिकलेक्ट। एंड नाउ व्हाट, गो बियॉन्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे फोकस मत रखना, फोकस रखो मेरी थॉट प्रोसेस पे, हाउ आई एम थिंकिंग, हाउ आई एम राइटिंग एंड व्हाट ऑल इज विजिबल। अगर आपको अभी पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही है तो आप कौन से वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एकदम से आपका ध्यान किस वर्ड पे जा रहा है। मे बी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जा रहा है क्योंकि उसका डब्बा बनाया हुआ है, तो उसको दिखते एग्जामिनर को दिख गया कि ठीक है भाई क्वेश्चन को ये डिमांड को एड्रेस कर रहा है। देन यू सी व्हाट ऑल इज हाईलाइटेड। हाईलाइटेड क्या दिख रहा है आपको? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, हाई डिसेंट्रलाइजेशन, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, इंटीग्रेशन। नाउ टेल मी, ये सब वर्ड आपके कीवर्ड हैं या नहीं है? ये सब डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर मैं नॉन हाईलाइटेड नहीं पढ़ता, नॉन अंडरलाइन नहीं पढ़ता, so still what all is highlighted, is it very clearly elaborately answering the demand of question or not? स्टार्टअप इज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा, हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, हाई डिसेंट्रलाइजेशन होगी, इंटीग्रेशन होगी, एंड दैट इज ऑल यू हैव रेड in your preparation or in the topics or subjects which we cover, और proper point form में I have written them. ठीक, if you move it, self empowered teams, again we read about it, are created with dedicated resources, and startups में होता भी ऐसा है, जैसे let's say गूगल के एग्जांपल है, एंड्रॉइड टीम होगी, इनका दूसरा गूगल सर्च इंजन की टीम होगी, गूगल चैट जीपीटी के साथ ही किसी और साथ लिंकेज होनी है उसकी टीम होगी, सो दे विल हैव देयर ओन रिसोर्सेज, दे विल बी परफॉर्मिंग ऑटोनोमसली, राइट। देन यूज ऑफ नीश स्ट्रक्चर्स, जो मैंने पढ़ा हुआ है सर, एक बार रुको रुको, जो मैंने पढ़ा हुआ है मैंने उसके बारे में बताया कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ऑल कीवर्ड्स, नथिंग न्यू, साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रैपिडो के एग्जांपल लिखा है, ऑल यू हैव हर्ड अबाउट इट, उबर का एग्जांपल लिखा है, कैसे वो फीडबैक लेते हैं एंड दैट फीड्स इनटू देयर रेटिंग एंड इट इज बिकमिंग अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स लिखी। सो ऐसा भी नहीं है कि आई शुड गेट कैरिड अवे विद द फीचर्स ओनली और मैं बाकी कुछ चीज लिख ही नहीं रहा हूं। आई गिव द सेकंड डायमेंशन, की प्रॉब्लम्स क्या है अब स्टार्टर में, गिवन की मैंने फीचर्स एक्सीड कर दिए थे, ज्यादा स्पेस ले लिया था, तो मेरे को ऐसा डायग्रामेटिक फॉर्म में थोड़े थोड़े कीवर्ड्स लिख के, अगेन जॉब एम्बिग्यूटी है, फाउंडर ड्रिवन कल्चर, देख रहे हो, कल्चर वाले टॉपिक से, कल्चर वाले चैप्टर से आया, जॉब एम्बिग्यूटी मेरा एचआरएम से आया, नो बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अगेन मेरे चैप्टर 4 से आया, पुअर कंट्रोल मैकेनिज्म्स अगेन उस टाइम जो करंट फेस चल रहे थे उससे आया, डायग्राम बना के थोड़ा थीमेटिक भी बना दिया, दूसरी डायमेंशन भी दे दिया, कुछ नया नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मेरे लिए बहुत प्रैक्टिस थी, यू माइट बी एबल टू डू इट क्विकली, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो लिखना है, छोटी सी इंट्रो लिखनी है, जितनी डायमेंशन बढ़ा सकते हो 10 मार्कर में बढ़ानी है, अगर स्पेस कम बचा है उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कर देना है, और जब आपका पॉइंट शुरू हो रहा है, कोई भी पॉइंट अगर आप मेरा देखोगे, पीछे जितने भी पॉइंट्स मैंने 6 पॉइंट्स लिखे थे, द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज द कीवर्ड, तो फर्स्ट वर्ड जब कीवर्ड होता है तो आगे पढ़ता ही नहीं है एग्जामिनर, और लाइन के बीच में ढूंढना नहीं पड़ता। आई स्ट्रक्चर माय पॉइंट्स इन सच अ मैनर कि कीवर्ड से मेरा पॉइंट स्टार्ट हो, ना कि हेल्पिंग वर्ब या उससे स्टार्ट हो, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप इज, पहले ही कीवर्ड से स्टार्ट किया ताकि उसे पता लगे ही कीप्स मूविंग अहेड। और उसके बाद कंक्लूजन में देखो एक कोट यूज करी, स्ट्रक्चर इज द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, hence as highlighted by Greener, startups should continuously review their structure to avoid challenges of leadership, autonomy and coordination। अब शायद चेंज मैनेजमेंट में हमने पढ़ा होगा कि ग्रीनर्स ग्रोथ मॉडल की लीडरशिप का चैलेंज आता है तो वो फिर कैसे रिजॉल्व होता है, फिर ऑटोनॉमी का चैलेंज आता है, फिर कोऑर्डिनेशन का चैलेंज आता है, फिर कोलैबोरेशन। तो मैंने वो कहां से चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी उठा के यहाँ पे कंक्लूजन में यूज करी, कोट के साथ यूज करी, कीवर्ड लिखे। एम आई क्लियर? समझ में आया कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ? एंड इट इज ऑल प्रैक्टिस, एवरीवन हैज लर्नड इट, यू शुड यूज्ड टू राइट sometimes means many a times rather better answers than me, and हर एक की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रैक्टिस थी। ही विल ऑल्सो शेयर हिज एक्सपीरियंस हाउ ही यूज्ड टू राइट। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में से जो अच्छा लगे, या दोनों का जो जो पॉइंट अच्छा लगे यूज इट, और लिख नहीं रहे हो तो एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करो।
तो धीरे धीरे एक होता है कि आपको नॉलेज है, दूसरा होता है कि स्किल है। वो नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड जितना आधा एक घंटा रोज करते रहोगे तभी वो मसल मेमोरी में आएगा, नहीं तो वो नहीं बनेगी बात। एनी डाउट? यह एकदम समझ में आ गया जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ? ठीक है, ऑल क्लियर? स्टिल अगर आपको कुछ भी लग रहा है, हैवी लग रहा है, दिक्कत आ रही है, तो यू कैन प्लीज फील फ्री टू आस्क। द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये सब आसान है, ये सब लॉजिकल है। वी डिड वी कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस, बट आई एम टेलिंग यू द वेरी एब्स्ट्रैक्ट चीज कि मेरे माइंड में क्या चलता था ये आंसर बनाते हुए। ठीक है, बना बनाया आंसर तो कहीं से मिल भी जाएगा। अभी आई रिक्वेस्ट की इशू विल अभी करेगा। हाँ, तो ही वांट्स टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स। तो अगर तब तक आपको कोई डाउट है वो भी टाइप कर सकते हो, ही इज एडिंग अ फ्यू पॉइंट्स टू Uh, in my understanding, the biggest pitfall, especially in paper 2, is कि हमारे आंसर्स बहुत ज्यादा जीएस लाइक हो जाते हैं। बिकॉज कॉमर्स में क्या है कि चीजें जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी इंसान लिख सकता है। अगर आपसे पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल चेंज लाना है तो क्या करोगे, तो इट्स नॉट समथिंग विच रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक नॉलेज फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो एट टाइम्स हमारा आंसर जीएस के जैसा हो जाता है। तो इसमें स्पेसिफिकली ये चाहिए कि हमारा आंसर लगे काफी स्कॉलरली। तो उसके लिए जैसा श्रावण ने कहा कि आपके आंसर्स में, जैसे उन्होंने बताया कि आखिरी में उन्होंने चेंज मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट कंक्लूजन में डाल दिया स्टार्टअप वाले क्वेश्चन में, ऐसा ही कुछ आपको भी करना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा है फेल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन 14 प्रिंसिपल्स को हम खाली उस क्वेश्चन के लिए ही रिजर्व रखते हैं। लेकिन अगर इफ यू थिंक अबाउट इट इन अ ब्रॉड मैनर, वो आपको पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, उनका एक प्रिंसिपल है अबाउट रेम्यूनरेशन। तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक इन कोटिंग फयोल इन अ क्वेश्चन ऑफ लेट्स से एचआरएम अबाउट सैलरी, या व्हाट्स स्टॉपिंग यू इन कोटिंग फयोल इन अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वहां पे आप एस्पिरिट डिकॉर्ड्स का उनका कंसेप्ट जो है वो क्यों नहीं लिख रहे हो। तो ये जो छोटी चीजें हैं, ये आपके आंसर को बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करने में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि आपका फर्स्ट यू शुड हैव अ वेरी थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, गुड होल्ड ओवर द कंसेप्ट, एंड एट द सेम टाइम ये वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक देखते हुए ये याद आ जाए कि कौन सा थिंकर मैं यहाँ पे फिटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपके आंसर्स की क्वालिटी को बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देगा, एंड यू विल ऑल्सो फील इट व्हेन यू रीड योर आंसर योर ओन सेल्फ। सुजावल कैन कंटिन्यू विद प्रेजेंटेशन नो। ठीक है, थैंक यू शिव भाई। एक 10 मार्कर हो गया, अभी एक 15 मार्कर कर लेते हैं एंड देन विल सी द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 3 बी कर लेते हैं, मैकेंजी का 7S वाला। मोस्ट ऑफ यू विल नो इट, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया फ्रॉम दैट। क्वेश्चन नंबर 3 बी। अगर आप इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस, वी कैन डिस्कस मोर आल्सो, वी डोंट माइंड। You can just brainstorm for a couple of minutes and then I can show you my answer. Indirectly आपके आंसर राइटिंग में। But for this, let's first do the 7S वाला। ठीक है, अभी आपको मैं 2 मिनट दे देता हूँ, यू कैन प्लीज रीड इट एंड अपने माइंड में पहले आइडेंटिफाई करो डिमांड क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितने पेज कितनी स्पेस पे क्या कौन सा सब पार्ट कवर होगा, वे फॉरवर्ड क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है, इतना बनाओ और फिर पॉइंट्स बाद में देख लेना, देन आई शो यू माय आंसर।
नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट और बताओ कि आपको क्या इससे अंडरस्टैंडिंग हुई, हाउ हाउ यू वुड हैव अप्रोच्ड दिस आंसर. ठीक है, यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस आल्सो. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. कोई जज नहीं कर रहा है. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी एंड कैश इट. जल्दी कर लो. Hello. हाँ जी, रोना. Hi. Hi, sir. Sir, I will start with since the question mentioned the how effectiveness can be achieved. So I will start with the definition of organizational effectiveness as an intro. And McKinsey 7S is a model which can be used to help this effectiveness. And now that the 7 key elements, 4 soft elements, 3 hard elements, I will write it down and diagram बनाऊंगा. डायग्राम के बाद फिर इसके बेसिक फीचर्स जो लिखना लिखो. अब इसके एप्लीकेशंस में मैं लिख सकता हूँ कि इससे मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प मिलेगा मुझे, और गुड लीडरशिप स्टाइल्स, स्टाइल भी एक इसका फीचर है. फिर एक एचआरएम में मेरा हेल्प हो सकता है बिकॉज मुझे स्किल्स ये एक इसका एलिमेंट है. सो एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल तो एप्रोप्रिएट एचआरएम में हेल्प होगा. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मेंटेन करने में हेल्प होगा. Or balancing between centralization and decentralization because the structure is also a part of these elements. And next advantages में इसका ये मेरा क्लियर एक हायरार्की बन सकता है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एंड देन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो मैंने की टर्म्स यूज करूँ, मैं अगर फेयल है, टेलर है, वो मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा लाइक दिस. एप्लीकेशंस सॉरी एडवांटेजेस में, एंड देन एडवांटेज और हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन होगी. तो गूगल का एग्जांपल लिख दूंगा. कल्चर अगर सही रहेगा तो, लीडरशिप अगर बढ़िया रहेगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होगा, उसका इफेक्टिव होगा. कोई भी टर्बुलेंट इन्वायरमेंट है, अनस्टेबल अनसर्टेन इन्वायरमेंट होगा तो आप टैकल कर सकेंगे. और इससे मैं एग्जाम्पल श्याम मानिक शॉ एंड कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का एग्जाम्पल दे दूंगा. सो नाउ लिमिटेशंस में मुझे लिमिटेशंस ज्यादा इसका पता नहीं था, बट मैं बना के बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा थियोटिकल है, ज्यादा प्रैक्टिकल लग नहीं रहा है. मोर ओवर इंटीग्रेशन में इसका इशू आएगा बिकॉज बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स और इन्वायरमेंट इस तरह का अनसर्टेन है, तो उसको लिंक करने में बहुत दिक्कत आएगी. एंड और मुझे बस अभी तक यही समझ में. अरे बस क्या ये सब कुछ यही है, इसके अलावा और करना क्या है? इट्स ऑल दिस. हाउ यू राइट इट विल मैटर. इसके अलावा ना मेरे दिमाग में कोई स्पेशल पॉइंट आ रहा है, ना ही किसी के माइंड में आ सकता. इन दैट लिमिटेड टाइम विद दैट लिमिटेड स्पेस, ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर existing knowledge to the best use. This holds true for all the 6-7 subjects. तो कुछ rocket science नहीं है. It is just about how fast and how integrated you are able to use your mind, existing knowledge and write a reasonable answer. और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो, बेटर हो जाएगा. That's it. एकदम परफेक्ट बोला आपने, कोई भी दिक्कत नहीं. मैंने भी ऐसे ही जुगाड़ से बनाया था. So let's see what I had written. तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे. थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आंसर्स. वन थिंग व्हाट वी कुड हैव आल्सो डन इज कि एप्लीकेशन और एडवांटेज को मे भी मर्ज कर देते. लार्जली सेम ही है तो मर्ज भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब मैंने जेंडिक्स इंट्रोडक्शन लिखी कि is dependent upon 7 key elements, their integration among themselves, especially with the goals called shared values. ठीक है, वही डायग्राम अब उसने रौनक ने भी बात करी, सेम वही डायग्राम बनाया. बट मेरे डायग्राम में भी शायद कुछ इनकम्प्लीट थे, एक दो डॉट्स कनेक्टेड नहीं थी, हार्ड्स ऑफ में डिस्टिंक्शन नहीं थी, which sir in his evaluation added. Let's move ahead. ठीक है, और फिर बेसिक फीचर्स, क्योंकि उसने फीचर्स पूछे थे, भाई शेयर्ड वैल्यूज लिखी मैंने. एंड दीज आर द गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और एग्जांपल लिखा सोशल जस्टिस फॉर इंडिया. भाई मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, दे आर द बेस्ट सोर्स फॉर एग्जांपल्स. और अब आप देखोगे कि जितने सर एक बार थोड़ा सा ऊपर पेज की स्टार्टिंग में, हाँ बस. तो हर फीचर उन्होंने पूछा ना, तो मैंने हर जो इंग्रेडिएंट था, जो हर कंपोनेंट था 7 स्ट्रेटजी का, उसको यूज करके ही उसका फीचर बनाया. और वो मैंने सबसे पहले लिखा और थोड़ी स्पेस छोड़ी. एंड इफ यू विल सी, इट इज विजुअली अपीलिंग. आपको एकदम स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ, स्टाइल सबसे पहले दिख रहा होगा, और कुछ दिखे ना दिखे, ये चीजें सबसे पहले दिखेंगी.
इट काइंड ऑफ अपने आप ही सेग्रीगेशन होगी, आप कीवर्ड कीवर्ड करके मूव करते जाओगे। एंड कई जगह मैंने साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखा है, एंड आई केप्ट मूविंग, बहुत सिंपल चीजें लिखी है, कुछ खास नहीं लिखा, ठीक है। फिर हार्ड एलिमेंट्स हो गया, सॉफ्ट मैंने फीचर्स बहुत ज्यादा बना दिए, 9 फीचर्स बना दिए, इतने नहीं बनाने चाहिए थे, 4-5 फीचर्स बना के खत्म कर देना चाहिए था, ठीक है। फिर सर ने ऐड किया हुआ है अ डोमिनो इफेक्ट एग्जिस्ट्स व्हेन चेंजिंग वन एलिमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इफेक्टिव बैलेंस। ये कुछ और एडिशन होगा, वी हैव नॉट रेड अबाउट इट, ठीक। आगे चलते हैं। फिर एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशंस में अब मैंने क्या किया, हार्ड एलिमेंट की एप्लीकेशन, सॉफ्ट एलिमेंट की एप्लीकेशन, और फिर इंटीग्रेशन की बात करी। अब देखो पॉइंट जनरेट करने वाली बात थी, एप्लीकेशन एडवांटेज इज लार्जली सेम, तो उसी का मैंने यूज किया जिसके अंदर कुछ मेरे गैप्स थे जो सर ने प्लग किए अपनी इवैल्यूएशन में, चीजें ऐड करी कि ट्रांसफॉर्मेशन में, ऑर्गेनाइजेशन चेंज में हो सकता था। फिर एडवांटेजेस में मैंने भाई इंटीग्रेशन की बात करी, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, चेंज मैनेजमेंट की बात करी, क्रिएट कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस एंड मेरिट टू सपोर्ट स्ट्रेटजी, यू नो कल्चर इट स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट, एक कोट हम सबको पता है, वो मैंने यूज कर ली। कंडक्ट ट्रेनिंग्स फॉर एम्प्लॉइज टू ब्रिंग बेटर स्किल सेट वगैरह। देखो जो मेरा एचआरएम का, ओटी का, ओबी का कीवर्ड है, उसी को मैंने इस टॉपिक के कंपोनेंट से लिंक करके पॉइंट बना दिया, तो मेरा ये वाला डिमांड भी एड्रेस हो गई और एक मेरा कीवर्ड भी ऐड हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक लिमिटेशंस। अब देखो लिमिटेशंस मैंने सेंटर में लिखा ना, द एग्जामिनर इज वेरी क्लियर। इसने इंट्रो दे दी है, इसने डायग्राम बना दिया है, इसने एप्लीकेशन, इसने फीचर्स बता दिए हैं, इसने एप्लीकेशन बता दी, इसने एडवांटेजेस बता दिए, अभी लिमिटेशंस बता रहा है, ठीक है। बड़ा क्लियरली डिमांड पूरी एड्रेस हो रही है, एंड द मोमेंट यू आर एड्रेसिंग द डिमांड स्पेशली इन जीएस, आपके जीएस में 400 में मतलब 380 385 से नीचे नहीं आ सकते अगर आप रीजनेबली वेल डिमांड एड्रेस कर रहे हो। और पेपर 2 में थोड़ा सा बेटर करोगे, थोड़ा सा बेटर चाहिए बिकॉज दिस इज ऑप्शनल। उसके बाद मैंने बात करी कि रिलेटिवली लेस फोकस ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात होती नहीं है, क्लासिकल नेचर की थ्योरी है ये। देन हाईली एब्स्ट्रैक्ट, लेस प्रिस्क्रिप्टिव, दिस डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ way forwards, this just gives a theoretical framework, जैसे रौनक ने भी बोला। less importance of hard elements, more of soft। तो अगेन यही कोड मैंने, इफ यू रिमेंबर, मैंने फर्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप्स के कंक्लूजन में यूज करी थी कि स्ट्रक्चर इज द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इज द बेसिस ऑफ सक्सेस। सेम मैंने यहाँ यूज करी, और उसको वही थोड़ा सा अपनी इनोवेशन करी। डिस्पाइट लिमिटेशन, 7S मॉडल ऑफर्स वेरियस इनपुट्स फॉर मैनेजर्स टू अचीव देयर 8th S ऑफ सक्सेस। तो ये थोड़ा सा मैंने इनोवेट कर दिया। बाकी लार्जली यू विल सी कि क्लासिकल चीजें हैं, नथिंग न्यू। यूज द कीवर्ड्स, यूज द डिफरेंट टॉपिक्स यू हैव रेड, ट्राई टू उनका एक मसाला बना लो अपने माइंड में, एंड ट्राई एग्जीक्यूटिंग देम। धीरे 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 आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आप रीजनेबल आंसर लिख के 125 130 तो आराम से ले लोगे, कुछ भी पूछेंगे वो, बिकॉज यू नो द कीवर्ड्स, कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे। एंड मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक दैट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी इज जस्ट लाइक दैट, कि आपको इधर उधर की मतलब हैवी वर्ड यूज करके इंप्रेस करना आना चाहिए, अनटिल अनलेस एक बहुत स्पेसिफिक थ्योरी पूछिए, ठीक है। एडवांटेजेस के पॉइंट लिमिटेशन में नहीं लिखना, मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन और एडवांटेजेस को क्लब कर सकते हो अगर टाइम कम है तो। एडवांटेज जो है वो लिमिटेशन कैसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास और टाइम होता है यहाँ पे तो प्रोबेबली आई वुड हैव एडेड अ कपल ऑफ पॉइंट्स, या मैं कंक्लूजन लंबा कर देता, हाउ दोस चैलेंजेस कैन बी प्लग्ड एंड मेक 7S अ होलिस्टिक मॉडल। की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, रौनक ने बात करी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, अ कल्चर ऑफ चेंज, merit oriented job analysis, job evaluation, skills based pay, etc. will ensure that there is a complete integration of individual goals and organization goals, and organization remains effective not just in present but for future needs also. Maybe आप डिपार्टमेंटल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स CDS की बात कर सकते थे, गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम 7S मॉडल, इंडियन मिलिट्री इज डूइंग दिस, ठीक है। तो एक और बढ़िया एलिमेंट बन जाता भाई, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, और आपके IRS एग्जाम्पल डिराइव हो जाते। और जब एग्जाम्पल आपका वो इवेल्युएशन खत्म हो रहा होता है, वहां पे अगर आपने एक एग्जाम्पल लिखा है तो ऑब्वियसली इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल लाइक टू कन्वे इज कि रोज 1 घंटा जरूर करो, लिखना नहीं है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, बोथ फॉर GS एंड ऑप्शनल। यू विल यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज। ऑप्शनल का तो जरूर, पेपर 2 का और पेपर 1 की थ्योरी को कतई इग्नोर नहीं करना है। न्यूमेरिकल 2-4 छोड़ने हैं, छोड़ जाओ, नो प्रॉब्लम। टॉपिक छोड़ना है, अमेलगमेशन टाइप्स छोड़ना है, छोड़ दो, बट अमेलगमेशन की भी थ्योरी जरूर करनी है, ठीक। नाउ विद दिस आई वुड वांट यू टू आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी इश्यूज देयर, आई एम हियर।
जिससे भी आप पूछना चाहते हो, जिसको भी बेटर कॉन्फिडेंस होगा उस पर, वी विल ट्राई टू एड्रेस यू। गोइंग फॉरवर्ड प्लीज ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत तभी से डालो। ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ लग थोड़ी रहा है, जैसे ही आपने ब्रेनस्टॉर्म करके सोचा कि मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आई टेल यू कि नहीं यार ये गलत है, इसमें ये भी इंक्लूड करना था, इमीडिएटली लर्निंग है आप। नेक्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन कम्स, यू कैन नॉट डू इट रॉन्ग एट ऑल, इमीडिएट। कोई वो नहीं है कि आंसर राइटिंग क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर लिखोगे, आंसर इवेल्युएट होगा, फीडबैक आएगा, फीडबैक डिस्कस होगा, वहां से आपको पता लगेगा एकदम। और जब आप गलत करते हो तो आपको और ज्यादा बेटर लर्निंग होती है। तो ब्रेनस्टॉर्म तो जरूर करते रहो। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड कोस्टिंग की बात कर रहे होगे आप शायद, है ना डॉक्टर मावल? छोड़ दो यार, मतलब एक टॉपिक कुछ भी छोड़ छोड़ सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट छोड़ सकते हो, बट ऐसे करो ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी आप मटेरियल और लेबर वेरिएंस तो कर लो ना। ओवरहेड वेरिएंस छोड़ दो, वहीं पे तो दिक्कत आती है, मटेरियल और लेबर वेरिएंस तो कर ही सकते हो, बाकी कुछ नहीं छोड़ना फिर, ठीक है? डिम्पी, amalgamation numericals or at least leave for the lab, yes absolutely, और amalgamation के numericals में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, but yes you can very well leave it if you, but बाकी चीजें नहीं छोड़नी है फिर, ठीक है? amalgamation के numerical छोड़ने छोड़ दो, but amalgamation के numerical में भी एक सिंपल न्यूमेरिकल आता है जिसपे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पे एक कंपनी की वो निकालनी होती है, 10% का रेट है, इतने प्रॉफिट है, उसके बेस पे वैल्यू निकालनी। वो बेसिक से चीज कर लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टाइप्स, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे बैलेंस शीट बनने हैं, वो छोड़, ठीक है? और थ्योरी तो जरूर करो, थ्योरी किसी चीज की मत छोड़ो यार, थ्योरी में क्या है, चीजें रटनी है, एक रीजनेबल आंसर तो आप कभी भी लिख सकते हो, यू हैव रेड इट। एनीथिंग एल्स प्लीज फील फ्री टू आस्क, नोबडी इज गोइंग टू जज यू एट ऑल। इशू इज आल्सो हियर, जो आपको मन में आ रहा है पूछ लो यार, मतलब वी बोथ, मतलब जब हम अभी तैयारी भी कर रहे होते थे तो वी ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि यार कोई चेक करने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई किसी से हम डाउट पूछ सकें राइट अवे। तो दैट इज व्हाट पुश्ड अस कि यार ठीक है, अगर हमारे साथ नहीं हुआ तो लेट अस टेक दिस इनिशिएटिव कि वी आर देयर फॉर अदर पीपल, जब वो बन जाएंगे तो दे विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क जो भी माइंड में, नोबडी इज गोइंग टू जज यू। अदिति, आकांक्षा, अनिकेत, अनिल, अंजलि, अपूर्व, अर्पिता, एनीवन? अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। इशू कुछ ऐड करना? एक लास्ट थिंग मेरे साइड से वुड बी कि पास एग्जाम क्वेश्चंस जो कॉमर्स के लिए है, उनको अगर आप एनालाइज करेंगे तो you'll फाइंड आउट कि एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। फॉर इंस्टेंस, आपको एक साल क्वालिटी सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अगले साल नहीं आएगा, और उसके अगले साल ये क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा ही आएगा। वैसे ही पेपर वन में एक साल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो अगले साल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको अगर आप अभी इस स्टेज पे क्योंकि आप पास एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे ही, तो उसके साथ साथ ये एक पैटर्न भी आप एनालाइज करना चालू करिए। इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं एक्सेल पे एक शीट बना लेता था कि इस साल में ये क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उनसे एक प्राइवेट चार्ट बना लेता था। तो उससे ये एक ब्रॉड प्रिडिक्शन आ जाता है अपने माइंड में कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कई सालों से क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर इससे इस बार पूछे जाने की के चांसेस ज्यादा है। तो ये वाली एक्सरसाइज ऑल्दो मैंने की हुई है, सुजावन ने भी की हुई है, हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं हमारा जो एंड प्रोडक्ट था, लेकिन वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जितने बार, जितनी फ्रिक्वेंटली आप ये चीज खुद से करेंगे, आपके दिमाग में वो सब कॉन्शियसली खुद ही सेट इन हो जाएगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंस ये अभी इनिशियल स्टेज है आपकी मेंस का प्रेपरेशन का, तो अभी से इस चीज को माइंड में रखना, और ये वाली चीज आप अपने पार्ट पे करते रहिए। that would be the last thing from my side. So Jawal can take on from here again. Thank you, Lord Issue, for his points. He was rank 81 at that point, and I was rank 84. So that is how we met and we prepared from there on. ओबी का पूछा है किसने यार, ओबी तो बल्कि नहीं है, मतलब आई हैव वेरी क्लियरली सेड कि ओटीओबी इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, तो ओटीओबी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब करना है। डिम्पी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल है, 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सिलेबस में लिखे हैं वही प्रिपेयर करने हैं। मैंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नोट्स भी स्कैन करके डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन रेफर देम।
एकदम सिंपल चीज है, काउंटिंग स्टैंडर्ड तो पहली चीज है जो आपको करनी चाहिए, नथिंग न्यू। सर शुड आई गो ऑफलाइन टेस्ट टाइम आई एम फ्रॉम दिल्ली? देख लो, दो चार टेस्ट ऑफलाइन दे लो, बाकी ऑनलाइन दे लेना, बस वो फ्लेवर मिल जाएगा। एक दो टेस्ट दे लो, ज्यादा उसको टाइम लगे तो मत देना। पेपर टू आयर, आयर के लिए क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं है, जिस जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ वहीं से करो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स यूज किए हुए ऑल आर गुड। आईआर में हार्डली 40-50 नंबर का अटेम्प्ट करने वाले हो अल्टीमेटली, सो नो पॉइंट गिविंग इट अ लॉट ऑफ टाइम। और आईआर की अमेंडमेंट भूल जाओ, कोई आईआर की कौन सी अमेंडमेंट, अच्छा फाइनेंशियल एक्ट की अमेंडमेंट भी भूल जाओ, अगर आपके रेजिडेंशियल स्टेटस क्लबिंग से रिलेटेड नहीं है तो। बस वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ओबी में नहीं छोड़ना यार कुछ। न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर थ्योरी क्वेश्चंस, यार न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर थ्योरी क्वेश्चन जितना सिंपल, जितना छोटा, जितना बेसिक हो सके। फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बनाना है, तो सिंपल बनाओ कि 100 रुपीज मैंने ईयर जीरो पे इन्वेस्ट किए, इफ आई एम गेटिंग 110 इन ईयर वन एंड 110 रुपीज इन ईयर वन एंड 121 इन ईयर टू, उसको डिस्काउंट करके रेट ऑफ रिटर्न विल बी 10%। हाँ, बस इतना, एकदम जितना छोटा हो सके। कैन यू फोकस मोर ऑन थ्योरी? एब्सोल्युटली मोनिका, थ्योरी पे ही फोकस करना है, टैक्सेशन की भी। बट न्यूमेरिकल्स में एक हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये दो न्यूमेरिकल्स जरूर करने हैं, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। टोटल इनकम हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, देयर आर मेनी वेरी हाई चांसेस ऑफ डूइंग इट रॉन्ग, लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, लॉट ऑफ नोवल एडजस्टमेंट्स। बट हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, इट इज ऑलवेज रिवॉर्डिंग और बहुत सिंपल आता है। इंडियस नहीं करना यार संजय, पहले भी मैंने बताया था, जो प्रोविजंस एएस और इंडियस में कॉमन है बस वो करो, क्वेश्चन कुछ भी आए आप वो सेम प्रोविजंस लिखाना। ठीक है, यही मैंने किया और यही इशू ने किया और यही हम सब ने किया और यही इसी के नोट्स मैंने डाले हुए हैं। 2025 के लिए एक डेडिकेटेड सेशन, और इफ देयर इज ऑलरेडी वीडियो ने आकांक्षा, वी विल ट्राई टू डू दैट। बट एज ऑफ नाउ इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, अगर आपने एक बार भी चीजें कर चुके हो तो assume कि 24 इज ऑलरेडी योर अटेम्प्ट, और उसी हिसाब से प्रिपेयर करो एंड राइट नेम्स एट होम। दैट इज द बेस्ट मैनर इन विच यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल। जीएस अपना आराम आराम से करते रहो, बट ऑप्शनल ऐसे सोचो कि मैं अल्टीमेटली यही मीन्स दे रही हूँ। और क्या है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है ना इशू, है ना? हाँ, कैलकुलेटर अलाउड होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एएस इंडिया सेम है, एएस इंडिया भाई सबको बता दिया मैंने, सब सेम प्रोविजन वाले करो, बेसिक जो आपको कोचिंग नोट्स में मिले होंगे, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं। एफएमआई कोचिंग मटेरियल, हाँ, और कुछ कुछ कीवर्ड्स, कुछ नई चीजें, तीन चार लोग ग्रुप बना के, मतलब हाँ, राहुल सर भी बता रहे थे, ही हैज आल्सो डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड हैज एडेड अ लॉट ऑफ FMI एग्जांपल्स एंड न्यू FMI पॉइंट्स फॉर एफएमआई। FMI में जो भी आपको चाहिए, एफएमआई स्पेशली मेंस 24 वाले, प्लीज कॉन्टैक्ट, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। करें हमने इस बार स्पेशल प्रिपेयर। ठीक है, फेयर इनफ। ऑल न्यूमेरिकल शुड वी डू देयर ओनली ऑन पेपर, यूज मार्जिन्स फॉर दैट फॉर ड्रिल? सर ऑल न्यूमेरिकल वर्किंग शुड वी डू देयर ओनली ऑन पेपर? हाँ, ओनली ऑन पेपर ही करना है ना, ऐसे मार्जिन मार्जिन यूज नहीं करने, वहां लिखा होता है प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग बिहाइंड ऑन द साइड ऑफ दिस लाइन, नंबर कट जाते हैं वो पेनल्टी वाले। मार्जिन के बियॉन्ड कुछ नहीं लिखना है, कोई भी ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है मेन बॉडी का पार्ट रहेगी, ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट में ही छोटी मोटी वर्किंग दिखा दो या वर्किंग नोट बना दो, छोटी सी वर्किंग है तो वहीं दिखा दो, नोट लिख के, वर्किंग नोट लिख के या ब्रैकेट बना के, वरना इनको। ठीक है, एनीथिंग एल्स? लेट्स क्लोज। आप सब मेंस लिख रहे हो ना? एनीवन हु इज नॉट राइटिंग मेंस इन दिस सेशन? There are few people around, I think 7-8 people are there who are not writing 25. So बा, not बाकी rest we are writing. बाकी 20-22 लोग मेंस लिख रहे हो। Hmm. ठीक है, तो whenever you want कि कोई कॉपी दिखवानी है, कुछ स्पेसिफिक इनपुट चाहिए, you're struggling with something especially in optional, feel free to ask। और इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जब आप मेंस खत्म करो तो आपको पता हो कि यार मैंने अपना सब कर दिया, इसके बियॉन्ड में कुछ नहीं कर सकता था, एंड ट्रस्ट मी रिजल्ट विल बी फेवरेबल। बट रिजल्ट के लिए मत करना, अपने लिए करना, अपने सुकून के लिए करना कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट एंड इट विल ऑलवेज बी वर्थ इट, द हार्ड वर्क यू पुट इन। ठीक है, 4-5 लोग आए थे। ठीक है, इश्यूज Thank you. और सेट। ठीक है, So there's a question: is the PYQ enough for numericals? It's not enough, but it is very important. Like अगर आप
PYQ करेंगे तो you will get to know कि which area to focus on, and along with that please do the core area of that topic also. So it's not enough, it's not ब्रॉडली हाँ the point. Yeah. ब्रॉडली चल जाएगा, टाइम है तो और भी कर लो, नहीं है तो दिस इज द बेस्ट बेट यू कैन मेक। एंड उसे कोई बार बार करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने PYQs कर लिए और उसके बाद ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। मे बी इट विल टेक जस्ट एक्स्ट्रा 1 मिनट और 2 मिनट्स, बट PYQ तो सैक्रोसेंट है, वो तो करने ही करने हैं। इसके अलावा 2-4 टेस्ट दे देना, दैट विल गिव यू सरप्राइज एलिमेंट, और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, सर Thank over you. to you Thank now. you, Javal. Thank you, Ishu, for your time. And we'll have more such sessions. Thank you, everyone. And please implement all these tips. It was a wonderful session. Have a nice day. Thank you everyone, all the best.